Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. It's really happy occasion that we are joining this online para coaches education program. Yes, sir. So Thank you. I've spoken to Dr. Roy. He will be joining very soon, ma'am. And he joined earlier, but that was still 5 minutes to go. So we were waiting for the attendance to hit the 100 mark. So हमने कहा थोड़ा सा, it was too early to welcome him with no audience. जी, जी. Thank you, sir. It's been an amazing journey for me. Also, I've learned a lot. It's a learning for everybody actually. It's the first time. Yes. It is being organized in not only para sports, 20 sports से ज़्यादा में हो रहा है, and it is a beginning. Rather, I'll say we have just started this movement of e-learning. क्योंकि अभी तो I think sports को शुरू होने में 2-3 महीने लग जाएंगे. So gradually, by the time we have to utilize this time in a very good manner, जिससे कि एक फिटनेस बनी रहे लोगों की, और जब वो फील्ड में उतरे तो उनको उससे ज्यादा नुकसान ना हो. We can say they can recover in a very early manner. जी sir, and I'm grateful for this initiative to Sports Authority of India that has also given us a jump start as the world of para sports, and I have personally enjoyed and learned a lot through these webinar sessions. We have been conducting these sessions since 30th of April, and we have covered vast topics like introductions and basics of para swimming by Dr. V.K. Dabas, introduction to para athletics by Satyanarayan sir, para athletics coach. We've had visually impaired athletics, a special session given by Dr. Satyapal. We also have had the honor of having our para athletes who are now coaches with SAI. We had Amit Sarowa speak about para athletics wheelchair athletes, and we had Rajinder Singh Rehelu, Paralympian, and we had Farman Pasha talking about the para powerlifting. JP Nautiyal sir joined us and spoke about para shooting. Gaurav Khanna spoke on para badminton. We had Kuldeep Kumar Vedwan on para archery. Physiotherapy, classification and rehab was an amazing session by Gagan Shetty, very descriptive. And wheelchair skills and spinal cord injury, which is a very major part of para sports, was covered by Dr. Virendra Vikram Singh from KSNR. Yesterday, we spoke about nutrition and especially nutrition in physically challenged athletes. So it has been a very amazing holistic journey learning about the basics of many para sports, and we still have some more to cover. We will continue these sessions, like I said, post today also, maybe twice a week from next week onwards. But ये हफ्ते हम शनिवार तक लगातार मिलते रहेंगे. आज हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ फाइनल सेशन है. So I'm very proud and thankful. We are waiting for Roy sir to join the seminar. Meanwhile, Sandy has sir joined. Have we see him joining? Not yet, ma'am. Not yet. So maybe Raghav sir, maybe your SMS could be. Let me give a call to him. Yes, yes, sir. Meanwhile, we can we've had very nice. So we have even NIS coaches. We have Nikam sir. He's an NIS coach from Maharashtra joining. Muzaffarpur, Bihar, Kumar Aditya Singh. Sorry to interrupt, ma'am. Roy sir with us. Okay. So can I officially welcome? I welcome Mr. S.S. Roy, who's very senior executive director, Sports Authority of India, with an experience of over 30 years in administrative role, and has taken upon the challenge of these digital webinars, spreading education among the various sports, various topics. And I am very glad and happy as a Paralympian, as somebody who has served para sports as an athlete for past 15 years, that this was an inclusive approach of Sports Authority of India, where we got to gather the world of Paralympic sport in India and talk about the introduction. We were very happy that
coaches from all around and athletes, not just from India, but also from South Asia. We had a lot of people join us. We've had some amazing attendance, great content, very good speakers, and this webinar during the time of lockdown has come as a great medium to connect to the entire fraternity of sports, and also introducing para sports not just to the disability world but also to the able-bodied sports and fitness world. Thank you so much, sir, for giving us this opportunity. I heartily welcome, and well, like you said earlier, this is not a closing address. This is just a beginning of new normal. So, sir, a few words from you would mean a lot. Thank you very much, ma'am. And good afternoon to all the participants. It was a wonderful experience for me, at least, to have this path-breaking device of educating people all around the country for the coach education program. We started on for other disciplines on 16th of April, and we did it in 26 disciplines. And about 12,000 sports coaches and athletes have participated in this. And separately for the sports science, we had an average of about 3,000 people attending every day. So this was a path-breaking thing for us, and the coach education program will go a very long way in this with this endeavor. I thank Madam also, Madam Deepa Malik also, to have organized this and helped SAI in doing such a great and a wonderful job for the para athletes and the other people who wanted to know about this discipline. I am very encouraged that more than 300 people on an average participated in each of the sessions of the para sport, and we had regular 300 plus attendance. I'm delighted that you also felt, madam, that this was a great endeavor, and it is path breaking, and I think together in future also we will be more structured and devise some mechanism to take this over to a larger population. I'll not get much of time to get into all this, but then I congratulate all of you. I congratulate all the participants who have participated with great zeal and enthusiasm, and I hope that you have learned a lot. Thank you very much, ma'am, for having me. Thank you, sir, and a special thanks goes out to Mr. Raghav, Director from Sports Authority of India, Gandhinagar. Thank you, sir, for guiding us through this, for giving technical support from your center. And a big thank you to Rajiv Chukral, sir, also for being our invigilator and who has been assessing our sessions. And well, we hope I am assured through the words of Mr. Roy that our reports have been positive and very encouraging. Thank you, sir. And Raghav, sir, 2 words from you also. Thank you, ma'am. Thank you. First of all, as sir said, it is a great initiative by the Sports Authority and the Ministry, and the collective efforts of all the SAI officers as well as Federation executives, especially for para-athletes. I can say, Deepa ma'am, it is because of the collective efforts of everyone that this e-learning coaches education program, which is first time organized by the Government of India, SAI, it has become a great success. And I really thank for all your team members and every officer of SAI and whosoever associated for this great opportunity. और पार्टिसिपेंट को मैं यही कहूंगा कि इस ई लर्निंग से वो जितना ज्यादा फायदा उन लोगों को हो पाए हर सेशन में उसको ठीक से अटेंड करें, और जिससे कि ये जो कोविड के दौरान जो प्रॉब्लम हुई है, जो हमारे को फिजिकल कंस्ट्रेंट है मूवमेंट्स का, तो इसमें हमें स्पोर्ट्स पर्सन को फिटनेस को बरकरार रखते हुए आने वाली टाइम में जब भी कोचिंग शुरू हो उसमें वो जितना जल्दी हो पाए उसको अपनी स्किल्स को रिकवर करें. थैंक यू वेरी मच मैम. And I think thank you so much, sir. And thank you very much, sir. And a special thank you, ji sir. Special thank you goes out to Sandeep, who we fondly call Sandy. He is a para athlete, international para athlete.
he has, from the side of Parasports fraternity, given us a huge support, a technical support in hosting these webinars alongside with Sports Authority of India. We are hoping that having gone through this whole session and introduction of the challenges also, and the difficulties, as well as the techniques and requirements of para athletes during training, which are very different than the able-bodied. So I'm sure Sports Authority of India would also have gone through this journey with us and understood that how assistants, competition partners, rehabilitation experts, all these are very essential part, and we look forward to a huge support whenever the team is being decided to go. So we would need this assistive staff with us. So that is one request going from my side to the seniors of Sports Authority. And at the same time, I will now like to formally start and also request you, sir, that we are continuing these webinars from tomorrow onwards. Also, we are going to have an Olympian, Sanjeeva Singh ji. He is also a Dronacharya awardee. He'll be talking about how we make Olympians and Paralympians. So that's a motivational session tomorrow that will also be very, very encouraging, and it will be across all sports. It's a common motivational session. So more and more people should join us, and we'll continue these webinars as initiative of the Para Sports Federation hereafter also. So continue the Zoom ID is going to be the same. The password will be the same. You are most welcome to join. We are trying to host it at the same time, 3 p.m. every day. And now I take this opportunity to welcome Gayatri Vartak Mankekar. She is a sports psychologist. We have to include psychology and mental health. This is a very, very important part of any sports competition or any holistic approach of training of any athlete, of any discipline, of any sport. Gayatri is a perfect blend of elite sports and higher education. Gayatri was a former international badminton player. She represented India in the prestigious Uber Cup. She was a sub-junior national champion and a top 100 singles player in the world. She has also been a state-level swimmer. After her decade-long badminton career, she went on to pursue her master's in psychology from Pune University and held a rank in the university for the same. She then co-founded Samiksha Sports Private Limited along with her colleague Janki. While Samiksha began to grow slowly and steadily, she pursued an MSc in psychology of sport and exercise in United Kingdom. Having done that, Janki and Gayatri became the only sports psychologists in India to be recognized by the British Psychological Society. Samiksha has grown from working within Pune to having offices within 3 major cities, Pune, Mumbai, and Bangalore. The consultancy currently, you have to hear the list, and we are very proud, Vartika, that you're with us today. Your experience is going to really benefit us all. The consultancy currently caters to prestigious sport institutions in the country: BCCI's National Cricket Academy, Prakash Padukone Badminton Academy, Olympic Gold Quest, Army Sports Institute, Virat Kohli Foundation, Sri Mata Vaishno Devi Archery Academy, Nikhil Kanetkar Badminton Academy, Ashoka Archery Academy, Nandan Bal Tennis Academy, Tennis Excellence, Vedvan Archery Academy, amongst many others. And having given her expertise to 1,200 plus athletes and para-athletes in the disciplines of swimming, badminton, rowing, archery, and athletics. I don't think there could be more decorated person right here with the kind of rich experience that you have. Without taking away any further time, I welcome you, Vartika. Honored to have you. And please guide Sandeep, Sandy we fondly call, with your presentation, or you will be playing it yourself. You'll be taking it, yes. And before we hand over the podium, the screen to you, I would again like to request everybody, please आप chat box में अपनी attendance जरूर डालिएगा. सैंडी के हैंडल से हम लोग गूगल फॉर्म को भी इसमें लिख रहे हैं चैट बॉक्स में. आप उसको कॉपी करिए और गूगल फॉर्म जरूर भरिए. इट विल कीप अस कनेक्टेड फॉर फ्यूचर वेबिनार्स एंड attendance is important. Over to you, Vartika. Yeah,
Thank you very much, Deepa ma'am. It is indeed an honor to be here. With thanks to Sports Authority of India, the Paralympic Association, Paralympic Committee, for having us here and letting us share our experience to everybody. So I'm just going to share the screen so we can begin without wasting any time. Thanks, Deepa ma'am, again. You've indeed said everything that you could have about me. You've not missed out on anything. I hope that I'm able to do justice to the high expectations that you've already set in place. So with that, I would like to begin. My topic for today is sports psychology. And it is something that I've been very passionate about when I was growing up. मैं जब खेलती थी तब मैं 12-13 साल की थी जब मैंने पहली बार साइकोलॉजी का इस्तेमाल मेरे खेल में किया था और जैसे मैं खेलने लग गई नेशनल लेवल पे आ गई तब मुझे पता चला कि इससे मुझे कितना डिफरेंस हो रहा है हाउ मच इज माय माइंड एक्चुअली हेल्पिंग मी परफॉर्म बेटर एंड बेटर एंड व्हेन आई sort of finished my career in badminton, and even before I finished my career in badminton, I thought that India didn't have professional psychologists who were working as sports psychologists. So it drove me to study sports psychology and start a consultancy of our own, which is where Samiksha was born. And that is why this topic is extremely close to me, very close to my heart, and this is what I do every day. So let me begin. Quickly let me tell you कि हम लोग आज सेशंस में क्या करने वाले हैं. तो पहले मैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बताऊंगी, उसके बाद उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बोलूंगी, जो फिजिकल चैलेंजेस होते हैं उसका माइंड पे क्या अफेक्ट होता है इसको थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, और फिर मैं एक मेंटल ट्रेनिंग रूटीन सिखाऊंगी सब एथलीट्स को, सब कोचेस को, ताकि वो कोचेस अपने पैरा एथलीट्स के साथ ये यूज कर पाएंगे. Okay, and I would like to start with a quote that the only disability in life is a bad attitude. So like we know, attitude is simply the single most important thing that all of us need to have. अगर हमारा attitude सही है, अगर हम positive attitude से situations को deal करते हैं, तो 100% हमें success मिलता है. And I don't think कि हम जो able bodied athletes है, वो ये समझ पाते हैं जितना डिफरेंटली एबल्ड एथलीट समझते हैं. उनके माइंड में इतना पावर है, इसके वजह से वो इतना खेल पाते हैं और इतनी खेल में ऊंचाइयां ले पाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. मैं जब स्टार्ट करूंगी तो मुझे आपको ये कहना है कि आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा. मैं थोड़े सवाल करूंगी, आपको अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़े सवाल अगर आप आंसर चैट बॉक्स में लिख सकते हो तो भी चलेगा. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद अ क्वेश्चन. आपको अभी सभी को एक सामने एक पेड़ दिख रहा है, करेक्ट? सबको दिख रहा है. अभी मेरा सवाल ये है कि ये पेड़ को ग्रो करने के लिए, अच्छी तरह फ्लरिश होने के लिए किन चीजों की जरूरत है? तो मैंने ये एक्सरसाइज काफी बार किया हुआ है और हमें जो आंसर्स मिलते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. ये पेड़ को ग्रो करने के लिए, इतना खूबसूरत दिखने के लिए लोग कहते हैं कि इसको सनलाइट की जरूरत है, इसको वाटर की जरूरत है, इसको जो नीचे पेड़ है, जो ग्रास है, उसकी जरूरत है. तो इन सेंस हम लोग कहते हैं कि वाटर इज रिक्वायर्ड, गुड फर्टिलाइजर्स आर रिक्वायर्ड, गुड सनलाइट इज रिक्वायर्ड, ऑल ऑफ दैट इज ग्रेट, और उसके वजह से ये पेड़ इतना अच्छा दिख रहा है. पर क्या हम लोग ये देख रहे हैं कि उसके आजू बाजू जो हवा है वो बिल्कुल साफ और क्लीन है, और उसका फायदा ये जो पेड़ है उसको हरा होने में हो रहा है. अगर इसके आजू बाजू की हवा दूषित होती है तो वो पेड़ के पत्ते ब्लैक कलर दिखेंगे, पॉल्यूटेड दिखेंगे, करेक्ट? और ये मैंने आपको एनालॉजी इसलिए दी कि हमारा माइंड का जो इंपॉर्टेंस है स्पोर्ट में वो बिल्कुल ऐसे है. ये जो माइंड है ये हमें दिखता नहीं है, इसलिए हम इसको जब तक वो दूषित नहीं होता कभी इंपॉर्टेंस नहीं देते.
हम सिर्फ टेक्निक के बारे में बात करते हैं, फिजिकल फिटनेस के बारे में बात करते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमें वो दिखता है, हम उस पर काम कर सकते हैं और उसका रिजल्ट स्ट्रेट अवे हमें पता चलता है। लेकिन अगर हमने माइंड पे काम किया तो वो दिखता नहीं है, वो सिर्फ महसूस होता है। और जैसे मैंने कहा, अगर इसकी हवा दूषित हो ये पेड़ की, तो वो बिल्कुल इतना अच्छा ग्रो नहीं करेगा। वैसे ही हमारा माइंड पॉजिटिव और ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में एग्जैक्टली होता क्या है। एक वीडियो प्ले करना चाहती हूँ। आपने सबने ये वीडियो देखा होगा, इसके बारे में पढ़ा होगा, तो देखते हैं ये छोटा सा क्लिप। dell'India a causa di legami. Ça sera la première médaille d'or जो पिछला विश्व रिकॉर्ड है, वो भी भारत के मिल्खा सिंह के नाम पर ही दर्ज है। क्या मिल्खा सिंह इस बार भारत को पहली मर्तबा ओलंपिक के अंदर 400 मीटर की रेस का गोल्ड मेडल दिला पाएंगे? ये ऐतिहासिक रेस इस वक्त शुरू हो चुकी है और मिल्खा सिंह रेस के अंदर बढ़त बनाएंगे। सबसे आगे दौड़ते हुए मिल्खा सिंह और एथलेटिक इवेंट में भारत पहली बार गोल्ड मेडल हासिल करेगा। 400 metri Mica Singh sta buttando मिल्खा सिंह 200 मीटर के बैंड पर सबसे आगे निकलते हुए इस बार का गोल्ड मेडल उनकी ही जेब में है। मिल्खा सिंह ने पीछे मुड़कर क्यों देखा? गोल्ड मेडल भारत की उंगलियों से फिसल गया है और मिल्खा सिंह। तो हमने सबने देखा है, सुना है मिल्खा सिंह के ये ऐतिहासिक रेस के बारे में 1916 ओलंपिक्स, जिसमें हमें ये पदक जरूर हासिल करना चाहिए था। लेकिन जैसे हमने देखा, ये एक बहुत इमोशनल वीडियो है हम सबके लिए, और जैसे हमने ये देखा कि मिल्खा सिंह को इधर जो दिमाग में आया उसके वजह से वो ये रेस जीत नहीं पाए। करेक्ट? तो जैसे मैंने कहा कि ये 100% फिजिकली फिट थे ये रेस जीतने के लिए, 100% केपेबल थे ये रेस जीतने के लिए, पर उनको जो मेंटल इंजरी हुई थी, जब सेपरेशन के टाइम पे उन्होंने जो इंसिडेंट्स जो हुआ था वो उनको याद आया रेस करते वक्त, और उसके वजह से वो ये रेस में जीत नहीं पाए। तो हम देखते हैं कि मेंटल इंजरी से क्या प्रॉब्लम होता है। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होता है? हम अभी देख रहे हैं एक लड़का है इधर ऑरेंज में, और वो एक ट्रैम्पोलिन पे कूद रहा है। ठीक है? तो ये ट्रैम्पोलिन एक चीज होती है जिसपे हम कूदते हैं तो ज्यादा ऊंचा ऊंचा कूद पाते हैं। तो ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, ही इज पुटिंग एवरीथिंग, ही इज लर्न द टेक्निक, सब सीखा है और वो कूदने की कोशिश कर रहा है। और आप देख सकते हो कितना हाई कूद चुका है ऑलरेडी। करेक्ट? तो ये उसने ट्राई किया, जितना उसको टेक्निक आता था, जितना उसने फिजिकल ट्रेनिंग किया था, उस वजह से वो इतना हाई जंप कर पा रहा है। लेकिन अब हम और एक देखेंगे। अभी देखो, ये दूसरा ट्रैम्पोलिन है जिसमें ये लड़के ने एक हार्नेस लगाया हुआ है। ये जो डोरिया बांधी हुई है इसको, और इसने जो पहना है उसको हम हार्नेस कहते हैं। अभी ये हार्नेस लगाने की वजह से ये जब कूदता है तब उसका कूदने का लेवल अगर इधर है
जो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हो स्क्रीन पे, तो हार्नेस लगाने की वजह से वो और ऊपर कूद सकता है। ये क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है कि हार्नेस इज एग्जैक्टली लाइक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. बिकॉज ऑफ द हार्नेस he is able to climb a higher level, and that is what sports psychology does. Sports psychology आपको peak performance में help करता है. For example, आप देखते हो कि काफी बार आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो और आपके अच्छे स्कोर्स भी आते हैं, अच्छे नंबर आते हैं, अच्छे टाइमिंग आते हैं, लेकिन जब एक बड़ा इवेंट होता है, आप जैसे ही उधर एंटर करते हो, मीडिया होता है, लोग होते हैं, आपको देख रहे होते हैं, और उसके वो माहौल के लिए आपका जो मेंटल प्रिपरेशन है वो नहीं रहता है, आपने सिर्फ फिजिकल प्रिपरेशन किया हुआ रहता है, और इसके वजह से हमें मेंटल हर्डल्स आते हैं जिनके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं होते. तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का ये टू फोल्ड काम है. एक ये है कि वो आपको मेंटल हर्डल्स, अगर आपको कोई आ रहे हैं, जैसे बिग इवेंट्स में जाना, जैसे पैरालंपिक है, वो सिचुएशन हमारी लाइफ में रोज नहीं आता है, वो कितना इंपॉर्टेंट सिचुएशन है हम सब जानते हैं. वर्ल्ड गेम्स है, वर्ल्ड पैरा गेम्स है, वो कितना इंपॉर्टेंट है हम सब जानते हैं. तो ये जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, उनमें जो मेंटल हर्डल्स आते हैं, उसको ओवरकम करने में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हेल्प करता है. और दूसरी चीज, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, परफॉर्मेंस एनहांस करने में हेल्प करता है. मतलब हम हमेशा सुनते हैं कि गुड और ग्रेट में एक फर्क होता है, और वो होता है माइंड का. What happens between the 2 years is what is very important. और वो माइंड जब अच्छी तरह से काम कर रहा है, तब 100% आपको परफॉर्मेंस मिलेगा. तो मैं थोड़े से मिथ्स इधर ब्रेक करना चाह रही हूँ. हम ऐसा सोचते हैं, और अक्सर मुझे ये लोग क्वेश्चंस भी करते हैं कि अगर हमें प्रॉब्लम ही नहीं है तो हमने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी करना, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या नहीं. तो इसका आंसर ये है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज मोर ऑफ अ क्यूरेटिव साइंस, मोर ऑफ अ प्रिवेंटिव साइंस एंड लेस ऑफ अ क्यूरेटिव साइंस. इसका मतलब ये है कि हम जब भी रिहैब करते हैं, आप सब रिहैब करते हो, आपको सबको पता है कि हम रिहैब करते हैं क्योंकि हमें इंजुरी ना हो, हम अपना जो फिजिकल कंडीशन है वो मेंटेन रखे, उसको हम बोलते हैं रिहैब. वैसे ही मेंटल ट्रेनिंग या स्पोर्ट्स साइकोलॉजी उसी तरह काम करता है. ये एक प्रिवेंटिव टूल है. अगर आपने मेंटल ट्रेनिंग हर रोज किया, ये जो मेंटल हर्डल्स आपको आते हैं उनका आना कम हो जाएगा, और जब वो आएंगे तब आपके पास स्किल्स रहेंगे जिससे आप वो हर्डल्स ओवरकम कर पाओगे. ये फर्स्ट चीज है. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर प्रॉब्लम है तो हम सॉल्व नहीं कर सकते. ऑफ कोर्स हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये एक प्रिवेंटिव साइड से देखा जाता है. सेकेंडली, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे आपको अगर कुछ हो रहा है, अगर आपको से हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, और वो जनरल फिजिशियन आपको यही कहता है कि हाँ, आपको प्रॉब्लम तो है, ठीक है, लेकिन आपको ना एक स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा जिसका नाम कार्डियोलॉजिस्ट होता है. वैसे ही स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जनरली साइकोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, लेकिन आप अगर स्पोर्ट में इन्वॉल्व हो तो मैं आपको एनकरेज करूंगी कि स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए, क्योंकि वो लोग ज्यादा इसके लिए पढ़ाई उन्होंने किया है और उनका एक्सपीरियंस स्पोर्ट में सबसे एलीट. जैसे हमें ऐसा लगता है कि जब हम इंडिया के लिए खेलेंगे, जब हम नेशनल कैंप में जाएंगे, तभी हम साइकोलॉजी कर लेंगे, तभी देखेंगे माइंड का क्या करना है. तो ये बिल्कुल गलत है, और ये गलत क्यों है मैं आपको बताती हूँ. अगर आप बैडमिंटन खेलते हो और अगर आपने एक ग्रिप सीखा और आप चलो स्टेट लेवल तक गए, और फिर आपने एक कोच को मिले और कोच ने बोला कि अरे आपका तो ग्रिप गलत है, आपको ये चेंज करके खेलना पड़ेगा. तो वो ग्रिप चेंज करने में वो पुरानी गेम लगता है, और ये जो टाइम है ये अपना वेस्ट हो जाता है. वैसे ही हम अगर मेंटल ट्रेनिंग लेट चालू करते हैं तो हमारे माइंड में कई स्ट्रैटेजीज हम बनाते हैं, कई विचार हम बनाते हैं जो हमें
शायद आगे जाके हेल्प नहीं करेंगे। तो अगर आपने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बेसिक लेवल पे स्टार्ट किया तो आपको बहुत हेल्प होता है, क्योंकि हाँ आप सही तरह के हेल्पफुल स्ट्रैटेजी सीखते हो। फिर आपका अगला सवाल ये होगा, मतलब कौन से एज में स्टार्ट करना चाहिए? तो इसका एक सिंपल सवाल है, जिस दिन आपको लगता है कि आप फिजिकल ट्रेनिंग कर सकते हो, टेक्निकल ट्रेनिंग की बात नहीं कर रही हो, स्किल ट्रेनिंग की नहीं बात कर रही हो, फिजिकल फिटनेस की बात कर रही हो, जिस दिन आप फिजिकल फिटनेस कर सकते हो उस दिन से आप मेंटल ट्रेनिंग चालू कर सकते हो। ओके, थर्डली मैंने जैसे बताया कि एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ये होते हैं जो स्पोर्ट में उनका स्पोर्ट का एक्सपीरियंस खुद का होता है, उनको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का पढ़ाई किया हुआ होता है और उन्होंने साइकोलॉजी का भी पढ़ाई किया होता है। अपना जो ब्रेन है वो एक ऑर्गन है और उसका साइंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसा नहीं होता कि मैं कुछ तो कर रही थी, अभी मुझे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में इंटरेस्ट आ गया, चलो मैं एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बन जाती हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो मैं आपको सबको एक सजेशन दूंगी कि आप जब आपके साइकोलॉजिस्ट को मिलते हो, किसी भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को मिलते हो, तो एक अच्छा स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हमेशा आपको उन्होंने क्या पढ़ा है, उनका क्या एक्सपीरियंस है, उन्होंने साइकोलॉजी कैसे पढ़ा, ये शेयर करने में उनको कोई ही प्रॉब्लम नहीं होगा। आप उनको ये सवाल कर सकते हो और मैं कहती हूँ ये सवाल करना जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप किसके साथ काम कर रहे हो। करेक्ट? आप जब कोच के पास जाते हो तो आप कोच के बारे में सब पता करते हो, तो जब स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो तब उनके बारे में भी प्लीज पूरा चीज पता कीजिए। और लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगी, जितने भी कोचेस आज मुझे सुन रहे हैं, कि हमें ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज ओनली फॉर एथलीट्स और प्लेयर्स, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का हेल्प कोचेस को भी बहुत हो सकता है, क्योंकि हमें अपने एथलीट्स पे, फील्ड पे आप सबसे इंपॉर्टेंट लोग होते हो। कोचेस के बिना स्पोर्ट नहीं हो सकता और कोचेस सबसे ज्यादा टाइम आपके अपने एथलीट्स के साथ बिताते हैं। तो आपको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी टेक्निक्स पता होना इंपॉर्टेंट है। इसके वजह से आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट नहीं बनोगे, लेकिन आपके एथलीट्स को आप बेसिक ट्रेनिंग दे पाओगे, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपके मन में जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे, जो भी सवाल होंगे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में, वो मैंने अभी तक आपको आंसर्स उसके दे दिए हैं। अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि क्या होता है एग्जैक्टली और कैसे हेल्प होता है वो देखेंगे। तो आपको ये जो दिख रहे हैं पैरा एथलीट, इनका नाम है लेक्स जिलेट। शायद कई एथलीट्स ने इनके बारे में पढ़ा होगा। ये एक लॉन्ग जंपर और ट्रिपल जंपर रह चुके हैं। ये जब 8 साल के थे तब इन्होंने अपना ये स्कूल में जाते थे और एक दिन स्कूल में से आने के बाद दोपहर को उनको दिखने में तकलीफ हो गई, तो उन्होंने अपने माँ को बोला मुझे देखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, और उनकी माँ ने उनको फिर डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर ने बोला कि इनके विजन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इनके आईसाइट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम इनको ट्राई करते हैं जो भी कर सकते हैं सेव करने के लिए। और काफी सर्जरीज बाद उनको ऐसा पता चला कि इनको कभी भी आईसाइट रिटर्न नहीं होने वाली है। तो इनके मदर ने इनको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली, और जो भी विजुअली इम्पेयर्ड एथलीट्स आज मुझे सुन रहे हैं वो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, कि उनके मम्मी ने उनको ये कहा कि बेटा आपको दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको विजन नहीं है, आपका विजन कायम रखिए। विजन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जो हमें गोल्स की तरफ लेके जाता है, और विजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्स जिलेट 4 पैरालंपिक खेल चुके हैं और 4 कॉन्जिक्यूटिव पैरालंपिक्स के लॉन्ग जंप इवेंट में उनको सिल्वर मेडल है। और उन्होंने जब इंटरव्यू दिए तो उन्होंने देखिए क्या कहा। उन्होंने कहा कि मेंटली स्ट्रांग होना फिजिकली स्ट्रांग होने जितना ही इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ फिजिकली प्रिपेयर करके हम टूर्नामेंट नहीं जीतेंगे, हमें फिजिकल प्रेपरेशन के साथ मेंटल प्रेपरेशन भी उतने ही इम्पोर्टेंस से करना होगा।
प्लीज सुनिए, इम्पोर्टेंस से करना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप फिजिकल ट्रेनिंग 1 घंटा करते हैं आपको मेंटल ट्रेनिंग भी 1 घंटा करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। मेंटल ट्रेनिंग आपको कम समय के लिए करना पड़ेगा पर उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप जान सकते हैं इसका इम्पोर्टेंट, टाइम का इम्पोर्टेंस नहीं है, क्वालिटी का इम्पोर्टेंस है। उसको माइंड ट्रेन करने को आपको आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने ऑफ कोर्स उनका माइंड ट्रेन किया हुआ है, ये मैं क्यों कह सकती हूँ, ये आप देखिए। अभी जैसे कोविड-19 का पैंडेमिक अपने देश पे, अपने वर्ल्ड में छाया हुआ था, तो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट लिखा और देखते हमने उन्होंने क्या ट्वीट किया। उन्होंने कहा, इफ यू मैसेज मी और टेक्स्ट मी फ्रॉम हियर ऑन, आई आस्क नो वर्ड्स ऑफ अपॉलॉजी, लेट इट बी वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। सो उन्होंने ये कहा कि अगर आप मुझे टेक्स्ट करना चाहते हो, मुझसे कोई सवाल करना चाहते हो, तो प्लीज ऐसा मत कहिए कि आई एम फीलिंग बैड फॉर यू बिकॉज यू हैव लॉस्ट अ ईयर। प्लीज ये कहिए कि आपका गोल्ड मेडल अगले पैरालंपिक में पक्का आएगा और आपको उसके लिए ट्रेन करने के लिए 1 और साल मिल गया है। देखिए ये सेम सिचुएशन उन्होंने कैसी दूसरी तरह उनका व्यू देखिए ये सिचुएशन के बारे में, वो देख रहे हैं कि हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल गया प्रिपेयर करने के लिए। तो ये पर्सपेक्टिव जो है, ये व्यू पॉइंट जो है, ये मेंटल ट्रेनिंग बार बार करने से मिलेगा। और नो वंडर ही इज अ 4 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट। अभी देखते हैं कि पैरा एथलीट्स जो है, डिफरेंटली एबल्ड एथलीट्स जो है, वो एबल बॉडीड एथलीट्स से अगर हमने उनकी तुलना की तो मुझे ऐसा लगता है, मेरे प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि उनका मेंटल ब्रेन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। एबल बॉडीड एथलीट्स ने उनसे बहुत सीखने को है कि वो कैसे अपने दिव्यांगता को साइड में रख के अपने टास्क पे फोकस करके उसमें एक्सीलेंस पाते हैं। तो उनका ब्रेन ऑलरेडी काफी स्ट्रांग होता है। फिर ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट करेंगे क्या, मैं करूंगी क्या? तो आप देखिए, अभी ये स्क्रीन पे एक वीडियो प्ले होगा, इसमें ये 2 व्हाइट में जो लोग हैं, ये एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, और ये आपका ब्रेन है, ये सेंटर में। अभी देखिए क्या हो रहा है। अभी जैसे आप देखोगे कि आप जब भी कोई एडवर्सिटी में से जाते हो, कोई मुसीबतों से जाते हो, तो आपका ब्रेन ट्रेन होता रहता है और आपके मसल्स जैसे बड़े होते हैं वैसा ब्रेन भी बड़े होते रहता है, ठीक है। वैसे ही जब हम एथलीट्स लोग हैं, पैरा एथलीट जो है, वो डिफिकल्टी से जाते हैं तो उनका ब्रेन काफी स्ट्रांग रहता है, उनके पास काफी सारे स्किल्स होते हैं। लेकिन ये जो 2 लोग इधर थे, वो क्या कर रहे थे, वो ब्रेन को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, वो उसको ठीक से लगा रहे थे। इसका मतलब क्या है कि वो अपने ब्रेन को स्ट्रक्चर देंगे। स्ट्रक्चर देना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट करते हैं। जैसे हमने देखा, आपने देखा होगा कि कुछ लास्ट हफ्ते में मेरे ख्याल से हरविंदर सिंह जी अपने लाइव में आए थे और उन्होंने जूम सेशन में कहा कि उनके साथ एक पर्सनल बड़ी दुर्घटना हुई थी। ही लॉस्ट हिज मदर व्हेन ही वाज ट्रेनिंग फॉर द नेशनल कैंप, और उसके बाद एशियन गेम्स में उन्होंने जाके एक गोल्ड मेडल जीता, करेक्ट। तो हमने देखा कि उनके पास वो स्किल है कि डिफिकल्टी में भी वो 100% एक मेडल ला सकते हैं। लेकिन उनको ये समझना इम्पोर्टेंट है कि ये आप सबके पास ये स्किल होता है, लेकिन जब हमें एक डिफिकल्ट सिचुएशंस आते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस आते हैं, तब ये स्किल हम कैसे उस सिचुएशन को अप्लाई करें और उससे हमें कैसे फायदा होगा, ये चीज 100% आपको एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट सिखा पाएंगे। तो प्लीज मैं आपको बताती हूँ कि मेंटल ट्रेनिंग जरूर कीजिएगा, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का यूज जरूर कीजिएगा, इससे आपके परफॉर्मेंस में बहुत फायदा होगा। हम आगे चलते हैं। अभी हम देखते हैं कि एक पैरालंपिक ट्रायथलीट है, हेली डैंस। ट्रायथलीट मतलब क्या होता है, जो एथलेटिक्स करते हैं, स्विमिंग करते हैं, उनको ज्यादा पता होगा इसके बारे में। ट्रायथलॉन नाम का एक इवेंट होता है एथलेटिक्स में, जिसमें 3 डिफरेंट टाइप्स के रेसेस होते हैं, स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग।
तो देखिए हेली डांस क्या कहते हैं। हेली डांस ने ये कहा, मैं पढ़ के बताती हूँ और फिर एक्सप्लेन करूंगी वापस। I realized that I was very good. I was really good at training, but not very good at racing. I could hit these numbers that were like super solid in training. But when the race day came around, I just couldn't reproduce it. Obviously, I had the physical ability to do it. There's just this disconnect when it comes to being in a high pressure environment and being asked to perform. तो देखिए हेली डांस क्या कहते हैं इधर, ये वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आपको पता होगा स्विमिंग, रनिंग और साइकिलिंग के इवेंट में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कौन से टाइमिंग से आप रेस फिनिश करते हो। तो ये कहना चाह रहे हैं कि हर एक इवेंट में जब प्रैक्टिस वो करते थे तब उनका टाइमिंग सुपर था, इतना अच्छा टाइमिंग था कि वो शायद सब मेडल्स जीत पाए। लेकिन जब उनको वो टाइमिंग एक हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में, मतलब कंपटीशन में करने के लिए इम्पोर्टेंट था, वो अक्सर नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसमें प्रेशर आ जाता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ काम करके माइंड ट्रेनिंग किया और फिर माइंड ट्रेनिंग के बारे में आगे जाके उन्होंने ऐसा कहा कि जैसे हम बैंड्स यूज करते हैं, थेरा बैंड यूज करते हैं, एक्टिवेशन बैंड यूज करते हैं, जैसे रनिंग करते हैं, सिमिलरली जब हम वो सब यूज करते हैं ट्रेनिंग में तो हम अपने खुद को कह रहे होते हैं, बॉडी को ये सिम्टम देते हैं कि ये हम कर रहे हैं ताकि हमारी बॉडी रेस के लिए, बड़े रेस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। वैसे ही माइंड ट्रेनिंग है, अगर हमने हर दिन अपने माइंड को प्रिपेयर किया तो वो समझ पाएगा कि हम एक रेस डे के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा आगे जाके कि उनकी जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट थी, उनके साथ काम करके उनको ये पदक हासिल कर पाए, सिल्वर मेडल लिया उन्होंने रियो ओलंपिक में। और ये भी बताया कि सिर्फ स्पोर्ट में नहीं लेकिन ऑफ द फील्ड भी उनको वो काम करने से, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के साथ काम करने से बहुत हेल्प हुआ। तो हम देखते हैं कि हमें जब डिफरेंटली एबल्ड एथलीट्स है तो उनको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैंने पैरालंपिक एथलीट्स के साथ काम किया है, डिफरेंटली एबल्ड एथलीट्स के साथ काम किया है और लास्ट 2 वीक्स में मैं सेमिनार भी सुन रही हूँ। तो मुझे एक चीज ये पता चली थी कि जो व्हीलचेयर बाउंड एथलीट्स है स्पेसिफिकली, उनका जो ट्रैवल है, जैसे आप ये फोटो में देख रहे हो, ट्रैवल टाइम वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि वो फ्लाइट में सबसे पहले अंदर जाते हैं और फ्लाइट से सबसे लास्ट बाहर आते हैं। तो सोचिए इतने लोग फ्लाइट के अंदर जाते हैं और इनके लोग बाहर आते हैं, तो कम से कम 2 घंटा, 1.5 से 2 घंटा एक्स्ट्रा उनको फ्लाइट में बैठना पड़ता है। अब सब जानते हैं फ्लाइट में बैठना कोई मामूली चीज नहीं है, 6-6 घंटा बैठना पड़ता है, बहुत तकलीफ होता है, करेक्ट। जो बाकी के लोग हैं वो उठ के इधर उधर चल पाते हैं, लेकिन व्हीलचेयर बाउंड एथलीट्स को वो पॉसिबल नहीं होता है काफी मोस्टली। तो उनका जो ये एक्सेस टाइम है उसकी वजह से उनको फ्रस्ट्रेटेड लगता है, उनका मूड खराब हो जाता है, उनको उसके वजह से प्रेशर फील होता है। और ये एक फिजिकल प्रॉब्लम जो हम देख रहे हैं कि उनको एक्स्ट्रा टाइम बैठना पड़ता है, उसका देखो कैसे इफेक्ट हो रहा है माइंड पे। सेकंड चीज ये है कि पैरा स्पोर्ट के वजह से हमारे सब डिफरेंटली एबल्ड जो फ्रेंड्स है उनको इंडिपेंडेंट बनने की स्किल आ गई है, वो सब बहुत इंडिपेंडेंट है। और जब वो कहीं ऐसी जगह जाते हैं जैसे होटल्स है, हॉस्टल्स है, जहां उनको मूवमेंट में तकलीफ आता है, तो उनको अक्सर हेल्प मांगने में भी डिफिकल्टी आती है क्योंकि वो बहुत इंडिपेंडेंटली अपने बाकी के काम करते हैं। तो वो ये जो डिफिकल्टी आती है वो मांगना पड़ता है हेल्प, उसके वजह से भी उनके माइंड पे इफेक्ट होता है। और मैं ये लास्ट चीज कहूंगी कि जो भी इक्विपमेंट यूज करते हैं, जैसे आर्चरी में स्टूल यूज करते हैं, व्हील चेयर यूज करते हैं, हम अलग अलग स्पोर्ट्स में कैलिपर्स यूज करते हैं, तो ये अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, जो मैकेनिज्म्स यूज करते हैं, मशीन यूज करते हैं, इनके वजह से
बॉडी पे, ह्यूमन बॉडी पे फ्रिक्शन के वजह से काफी टाइम ब्लिस्टर्स आते हैं या सोर्स होते हैं, और वो आपको दिखते नहीं है फिजिकली, पर उसके वजह से जो डिस्कम्फर्ट महसूस होता है उसका भी हमारे माइंड पे और फोकस पे बहुत असर होता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं एक व्हीलचेयर बाउंड एथलीट हूँ और अगर मुझे मेरे बैक पे सोर्स आ रहे हैं तो मुझे बैठने में तकलीफ होती है, और वो तकलीफ की वजह से मेरा जो अटेंशन है वो हर वक्त मेरे स्किल परफॉर्मेंस के टाइम उधर जाता है। और ये समझ नहीं पाते हैं लोग कि अरे ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये जो सोर्स है इनका इफेक्ट हमारे अटेंशन पे और फोकस पे पड़ता है। तो हम इसके लिए क्या करना चाहिए मैं आपको आगे जाके अभी बता रही हूँ। पहली चीज है कि हमारे दिमाग में जैसे फेलियर के थॉट्स आते हैं। जैसे एक बैडमिंटन प्लेयर है तो वो कभी कभी सोचता है मैच से पहले ही कि अगर मैं जीता नहीं तो क्या होगा, अगर मैं इस प्लेयर से हार गया तो मेरे वर्ल्ड रैंकिंग का क्या होगा। एक शूटर है तो शूटर, काफी सारे शूटर्स है, मैंने चैट बॉक्स पे देखे, स्वरूप ने मुझे हाय भी बोला, तो जैसे वो शूटिंग करते हैं तभी उनको दिमाग में आता है कि अरे ये स्कोर में अगर नहीं कर पाए तो क्या होगा, क्वालिफिकेशन का क्या होगा। तो ये जो फेलियर के थॉट्स है, ये सेल्फ टॉक, नेगेटिव सेल्फ टॉक की वजह से जो आ रहे हैं, इनको हमें चेंज करना पड़ता है। वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में हम वो सेल्फ टॉक चेंज कर पाते हैं, आपको सिखा सकते हैं कि हेल्पफुल सेल्फ टॉक क्या होता है। तो मैं एक सिंपल टिप आपको दूंगी सबको कि आपको जो करना है उसके बारे में खुद को इंस्ट्रक्शंस दो। क्योंकि आप जब बोलते हो, जैसे आर्चरी में अगर मैं शूटिंग लाइन पे खड़े होके आप बोलते हो कि अरे रेड में नहीं लगना चाहिए, रेड में एरो नहीं लगना चाहिए, इसका मतलब ये है कि 7 या 8 नहीं लगना चाहिए। तो ये मैं जब बोलती हूँ तो मेरे ब्रेन में एक इमेज रेडी होता है, जो होता है कि मेरा एरो रेड में लग गया, और मैं क्या करती हूँ, इसको हटाने की कोशिश करती हूँ। पर इससे अच्छा ये है कि आप ये कहे कि येलो में मुझे मारना है, 10 में मारना है, एक्स में मारना है। उससे क्या होता है, वही इमेज ब्रेन में क्रिएट होती है और वो आप रेप्लिकेट कर पाते हो। सेकेंडली, और एक चीज जो हम डिफरेंटली एबल्ड एथलीट्स में अक्सर देखते हैं वो ये है कि the average age of a differently abled athlete is slightly higher than an able-bodied athlete. और वो हायर होने की वजह से उनको जो प्रॉब्लम्स है पर्सनल लाइफ में वो बहुत होते हैं। जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, जॉब के प्रॉब्लम्स होते हैं, और ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं और उनको ये सब को मैनेज करके अपना स्पोर्ट मैनेज करना पड़ता है। और ये हमें अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि ये सब हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक एथलीट जो है वो जब एथलीट कर रहा है, मतलब स्पोर्ट खेल रहा है, तभी उसने माइंड अपना शार्प रखना चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है। अब अगर आप घर से ट्रेनिंग जा रहे हो और आपने एक बुरा एक्सीडेंट देखा तो उसका इफेक्ट आप पे होता है, आप उसके बारे में सोचते हो, आपको इमोशनल फील होता है। वैसे ही हम ह्यूमंस है, जो भी होता है हमारे लाइफ में उसका हर एक का इफेक्ट हमारे स्पोर्ट परफॉर्मेंस पे होता है, और ये मैनेज करना इम्पोर्टेंट है। सेकेंडली, एक परफॉर्मेंस प्लेटो का मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ कि आप देख रहे हो, सैंडी आपको दिख रहा है ग्राफ? ठीक है, यस आई कैन सी। या तो ये ग्राफ आपको दिख रहा है। आपको मैं आपका ट्रैजेक्टरी बताती हूँ। आप जब स्पोर्ट चालू करते हो तो पहले थोड़ा डिफिकल्टी होता है और फिर अचानक आपने वो स्किल पकड़ लेने के बाद ऊपर आ जाता है परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस जैसे ऊपर आता है, आप मेहनत करते रहते हो और ऊपर आ जाता है और ऊपर हो जाता है और आपका ग्राफ बढ़ते रहता है। फिर एक पॉइंट आता है लाइफ में जब ये ग्राफ ना अभी ऊपर नहीं जाता है, पर ये एक स्टेडी लाइन में जाता है। इसका मतलब ये नहीं नीचे जा रहा है, पर ऊपर नहीं जाता है, पीक परफॉर्मेंसेस नहीं आते हैं। तो इसमें एक गुड का टू ग्रेट का एग्जांपल देती हूँ। जो एक एलीट एथलीट है, जो एक ग्रेट एथलीट है, वो क्या करते हैं कि ये प्लेटो पीरियड में पेशेंस रखते हैं और ये सोचते हैं कि मुझे उतना ही मेहनत
मेरे मेंटल ट्रेनिंग पे करना है, उतना ही मेहनत फिजिकल में भी करना है, उतना ही टेक्निकल में भी करना है। वो कभी डीमोटिवेट नहीं होते हैं, वो अपना गोल स्ट्रेट रखते हैं और उस पर फोकस करते रहते हैं। और जो दूसरे टाइप के एथलीट्स होते हैं जो हमेशा एवरेज परफॉर्मेंस देते हैं, वो ये प्लेटो हिट करते ही उनको डीमोटिवेटेड लगता है, उनको लगता है अभी कुछ नहीं होने वाला है, एक्सक्यूजेस निकालने लगते हैं। तो इसमें आपको मैं बताऊंगी कि प्लीज आप पेशेंट रहे, इम्पोर्टेंटली आप सब आपका ट्रेनिंग करते रहे, फोकस करते रहे और मेंटल ट्रेनिंग भी कीजिए। आपको प्लेटो से बाहर आने में, जल्दी से जल्दी बाहर आने में और परफॉर्मेंसेस अच्छे लाने में हेल्प होगा। ओके, लास्ट चीज मैं टच करना चाहती हूँ कि क्लासिफिकेशन के टाइम हम लोग जब, आपको भी पता है सबको कि हर एक डिफरेंटली एबल्ड एथलीट सेम इवेंट में भी अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो सेम दिखते नहीं है, वो अलग अलग दिखते हैं। पर उनको देख के हमारे दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं कि अरे इनका लेवल ऑफ डिसेबिलिटी कितना है, ये कैसे हमारे साथ कंपेयर कर रहे हैं इनको। तो हमें कभी कभी लगता है कि लीनियंट क्लासिफिकेशन हो रहा है, शायद ये हो रहा है, वो हो रहा है। पर आप प्लीज अनफेयर बिहेवियर पे ध्यान मत दो, उससे आपका जो फोकस है आपके स्किल से वो हट जाता है और उसका परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होता है। उससे अच्छा मैं आपको ये बताऊंगी कि आप प्लीज जो कंट्रोल कर सकते हो उसी पे फोकस कीजिएगा। लास्ट चीज ये है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कि आपके जो गाइड्स है, आपकी जो टीम है और आपके जो कोच है, इनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप एक फीमेल एथलीट हो और आपके कोच मेल है या आपके फिजियो मेल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आपके प्रॉब्लम्स उनसे छुपाइएगा। प्लीज उनसे ओपनली बात करिए, क्योंकि वो सब कोचेस आपको हेल्प करना चाहते हैं। अगर उनको आपके बारे में जो आपका स्टोरी है, आपको जो कहना है, आपको जो महसूस हो रहा है, वो पता नहीं चला, तो वो आपको लिमिटेड वे में हेल्प कर पाएंगे। तो प्लीज उनसे ओपनली बात करिए। आपके जो गाइड्स हैं उनके साथ भी आपका ट्रस्ट, बॉन्डिंग, एक रिलेशनशिप होना चाहिए, और उसके लिए कम्युनिकेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी मैं टेक्निक्स सिखाऊंगी 2, और उसके बाद मैं सवाल लूंगी। लास्ट 2 टेक्निक्स है। विजुअलाइजेशन एक टेक्निक है जिसके बारे में हम बहुत सुनते हैं, सब बोलते हैं विजुअलाइजेशन कीजिएगा। विजुअलाइजेशन का ये मतलब नहीं है कि आपको विजुअली कुछ देखना है, ठीक है? विजुअलाइजेशन ये मल्टी सेंसरी भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आप विजुअलाइजेशन जो है वो आपके डिफरेंट सेंसेस से, मतलब सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच और सेंस ऑफ टेस्ट, इससे भी, और सेंस ऑफ हियरिंग, इससे भी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। ओके, मैं हर एक के डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि अपने पास उतना समय नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगी आपको कि विजुअलाइजेशन ये हमेशा आपके प्रोसेस पे या आपके स्किल पे होना चाहिए, रिजल्ट पे नहीं। रिजल्ट का विजुअलाइजेशन नेक्स्ट लेवल पे आता है, विजुअलाइजेशन के स्टेप्स होते हैं, पर सबसे बेसिक विजुअलाइजेशन ये है जो स्किल बेस्ड हो। जैसे एग्जांपल देती हूँ, अगर आप आर्चरी करते हो तो आप ये विजुअलाइज करोगे कि मेरा स्टांस कैसा है, मेरा पोजीशन कैसा है, मेरा ग्रिप कैसा है, मैंने बो हैंड उठाया है, फिर मैंने ड्रॉ किया है, मैंने कितना इनहेल एक्सेल किया है, मेरा एक्सपेंशन कैसा है और रिलीज कैसा है और फॉलो थ्रू कैसा है। तो ये क्या हो गया, मेरा शॉर्ट साइकिल पे या स्किल पे ध्यान दिया। अगर आप बैडमिंटन खेल रहे हो या दूसरा गेम खेल रहे हो, बास्केटबॉल खेल रहे हो, तो आप ये देखोगे कि मैं थ्रो कैसे कर रहे हैं, पकड़ कैसे रहे हैं, ड्रिबल कैसे कर रहे हैं। बैडमिंटन में आप ये देखोगे कि मेरा मूवमेंट कैसा है, मैं शटल के पास जा रहा हूँ, मैं स्किल एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप मेडल जीते देखेंगे, सिर्फ आप अच्छा टाइमिंग देखेंगे, उसका हेल्प होगा, लेकिन ज्यादा हेल्प आपको प्रोसेस बेस्ड विजुअलाइजेशन का होगा। सेकेंडली, कंपटीशन और प्री कंपटीशन 2 डिफरेंट टाइप के विजुअलाइजेशन होते हैं। स्किल बेस्ड विजुअलाइजेशन प्री कंपटीशन सीजन में हम करते हैं, और जैसे कंपटीशन नजदीक आता है हम हमारा विजुअलाइजेशन चेंज कर देते हैं। और इसका हेल्प क्या है?
विजुअलाइजेशन से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, हमारा मसल मेमोरी डेवलप होता है। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसमें हम महसूस करते हैं कि हम वो स्किल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है, आप सब यूज कर सकते हो। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आपका स्पोर्ट और सब डिटेल्स भेज के अगर आपने मुझे ईमेल किया तो मैं आपको बताऊंगी कि स्पेसिफिक विजुअलाइजेशन कैसे किया जाता है। अभी हम एक ब्रीदिंग रूटीन करेंगे, ऑडियो रिकॉर्डिंग आएगा और वो ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको सबको फॉलो करना है। इसका मतलब ये है कि जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं वो आपको फॉलो करने हैं। तो प्लीज आप अभी सुनिए और सिचुएशन जैसे इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं फॉलो कीजिए। रेडी, स्टार्ट। Sit comfortably. Relax your shoulders. Close your eyes and leave the weight of your body on the chair. Bring your attention to the breathing. Pay attention to how when you breathe in through your nose, you can feel the air on your nostrils. When you exhale, breathe out through your mouth. And as you breathe out, pay attention to the air going out of your mouth and how it feels on your lips. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Notice how your breath is slow, deep, and regular. Notice the rhythm of your breath. Smooth. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Notice how you feel aware of your breath. How you feel in control of your breath and your mind. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Now rub your hands against each other, the palms of your hands against each other. Place them on your eyes and slowly open your eyes. Okay, so जैसे आपने अभी ये रूटीन किया, इस रूटीन के वजह से आपको अभी सबको एक काम, कंपोज्ड और कंट्रोल में लग रहा होगा। ठीक है, तो आपको मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका जब फिजिकल वार्म अप होता है उसके बाद ये जो रूटीन है वो करवा के लीजिए आपके पैरा एथलीट से भी वो ये रूटीन यूज कर सकते हैं और इससे उनका जो मेंटल प्रिपरेशन है, जो मेंटल फोकस है, वो बाकी चीजों से हटकर उनके स्पोर्ट पे आ जाएगा। तो ये ऑडियो क्लिप जो है वो मैं शेयर कर दूंगी बाद में और आप सर्कुलेट भी कर सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं, हम भेज देंगे। ठीक है, माय की टेक अवेज टुडे, सेशन खत्म होने को आ रहा है तो मैं आपको एक जिस्ट में बता देना चाहती हूँ कि मेंटल ट्रेनिंग एक स्पोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, वो आपको मेंटल हर्डल्स ओवरकम करने में हेल्प करता है और उतना ही परफॉर्मेंस एनहांसमेंट में हेल्प करता है। आपको जो प्री परफॉर्मेंस रूटीन मैंने आपको बताया अभी, जो ब्रीदिंग रूटीन है और विजुअलाइजेशन, वो दोनों आप यूज कर सकते हो। और मेंटल ट्रेनिंग लास्टली एक ऐसी चीज है जो आपको रेगुलर नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने एक फिजिकल ट्रेनिंग आपका महीने में से एक बार किया
तो आपको पता है उसका आपको हेल्प कितना होगा, थोड़ा। अगर आपने हफ्ते में से 3 बार किया तो कितना हेल्प होगा, उससे थोड़ा ज्यादा। और अगर हमने रोज किया फिजिकल ट्रेनिंग तो कितना हेल्प होगा, बहुत हेल्प होता है। सिमिलरली मेंटल ट्रेनिंग भी अगर हमने, आपका चॉइस है, अगर आपको उसका हेल्प करके लेना है तो आपको ये रोज करना पड़ेगा। महीने में से 1 बार किया तो उसका इतना इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। और मैं ये समझती हूँ कि ये जो आपने सब सुना अभी, ये अगर आप इंटीग्रेट करोगे और ऐसे ही साइन ने जो ऑर्गेनाइज किए हुए वेबिनार्स है उसका आप इस्तेमाल करोगे, तो उसके वजह से ये जो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको हमारे सब पैरालंपिक मेडलिस्ट दिख रहे हैं, वो टोक्यो पैरालंपिक्स के बाद ये स्लाइड पूरा भर जाएगा और शायद हमें और ऐसे स्लाइड्स लगेंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ और ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको सबको आज का सेशन अच्छा लगा। आप जरूर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और जैसे मैंने कहा ये स्लाइड पे नेक्स्ट ईयर आपके फोटोज भी जरूर दिखाई देंगे। थैंक यू। Thank you so much, Vartika. It was really a journey of, I think, nostalgia for me, because जो भी साइंटिफिक अप्रोच जब मैंने अपनी ट्रेनिंग में डालनी शुरू करी, तो यही सीखा कि लोग बोलते हैं कि मैम कैसे, मेरे को याद है हमारे संदीप मान एक जूनियर नहीं, अब तो अर्जुन अवार्डी भी है, महाराणा प्रताप अवार्डी भी है, लेकिन बहुत छोटे थे जब मुझे पहली बार मिले थे। 2010 में हम लोग एक साथ CWG कैंप में थे और तब से आज तक, जब तक मैंने अपनी रिटायरमेंट नहीं अनाउंस करी, हम लोग इकट्ठे ही खेले हैं। हमने सारे एशियन गेम्स इकट्ठे खेले हैं। और जब 2018 में मेरा तीसरा लगातार एशियन रिकॉर्ड आया विद एन इंक्रीज डिस्टेंस, और तीसरे एशियन गेम्स में मेडल भी आया, तो उसने मेरे को हंस के कहा कि मैम उम्र भी बढ़ती जा रही है और डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है, ये क्या कर रहे हो आप। तो मैंने एक बार तो ऑफ कोर्स हम सब हंस दिए, लेकिन मैंने उसको बहुत गौर से सोचा कि वाकई 48 साल की उम्र में डिस्टेंस बढ़ा के मैं जावलिन में नया तीसरा रिकॉर्ड बना रही हूँ। रीजन क्या है? रीजन यही है कि एक साइकोलॉजी जो थी उसको पॉजिटिव रखा हुआ था। एंड प्रीति गुप्ता जी मेरी मेंटल ट्रेनर रही, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। स्पेशली रियो के टाइम मुझे ये बार बार सुनने को आता था कि शी इज गोइंग इन फॉर शॉर्ट पुट, एंड 46 ईयर्स की एज में किसी का गोला बढ़ता नहीं। एंड जस्ट शॉर्ट ऑफ द इवेंट मेरे को एक हाई कोर्ट का केस भी अटेंड करना पड़ा था, बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ डाउट कि मेरा सिलेक्शन सही हुआ था या नहीं हुआ था। तो मात्र 20 दिन रह गए थे रियो के मेडल में जाने में। पूरे देश की मीडिया की नजर मेरे ऊपर थी, क्योंकि कोर्ट केस होने की वजह से वो बहुत हाईलाइट हो गया था। और एक ऐसा प्रेशर जिसे कहते हैं, सो आई थिंक अगर मेरी मेंटल स्टेबिलिटी ठीक नहीं होती, तो जिस हाई कोर्ट केस के लिए मुझे 4.48 मीटर्स के लिए लेके गया था, तो कंपटीशन में मैंने 4.61 मीटर्स मारा। सो और 12 सेंटीमीटर बढ़ा के, 12-13 सेंटीमीटर बढ़ा के मारा। सो आई थिंक प्लीज जो भी आज का सेशन ले रहे हैं या सुन रहे हैं, एटलीस्ट मैं अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ कि साइकोलॉजिकल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड आपकी मेंटल हेल्थ, मेंटल पॉजिटिविटी एंड विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेकिंग और ब्रेकिंग द मेडल। तो ये आप प्लीज, हमें कोई क्वेश्चंस हैं या हमको राजेंद्र रहेलू सर या हमारे कोई पैरालंपिक मेडलिस्ट हमारे चैट रूम में नजर आ रहे हैं? आई विल डेफिनेटली लाइक टू अंडरस्टैंड। जैसे ये तो मेरा एक्सपीरियंस था, किसी और कोई एशियन मेडलिस्ट हैं जिनको अपने मेडल के पहले अपनी साइकोलॉजी का जो पॉजिटिविटी है? आई थिंक सुकांत इज देयर। लेट्स गेट सुकांत ऑन द स्क्रीन। Hey, can we get Sukant on the screen? Takes a bit, I guess. His video is not on.
सुकांत, can you hear us or can you get your video on? नहीं तो क्या आप हमसे बात करेंगे? Even audio has been not connected, ma'am. Anybody else? Sukant, we are missing you here. Please switch on your audio. It'll be good to take some experiences. और कौन से एथलीट्स दिख रहे हैं हमें? राजिंदर सिंह रहेलू सर इज है। उनको लीजिए, वो तो हमारे पैरालंपियन मेडलिस्ट हैं पावर लिफ्टिंग, उनके लिए तो बहुत फोकस स्ट्रेंथ गेम में है वो। They can speak now. राजेंद्र सर आप हैं? हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग राजेंद्र सर, हम लोग स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं और मैंने अपने एथलेटिक्स के कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए। हमने पैरालंपिक मेडल बनाया है। लास्ट स्लाइड में ये कहा गया था कि अगले वर्ष इसमें कई नाम जुड़ने वाले हैं और हमने ये कहा कि एक ट्रेनिंग हमारी बहुत बेहतरीन भी होती है, लेकिन मेक और ब्रेक आपका उस वक्त मेंटल फ्रेमवर्क और सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना होता है वो बहुत डिपेंड करता है मेडल बनाने में। तो आप मेरे को अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि जब आपका वो मेडल बना था तो आपकी मनस्थिति क्या रही थी, या कौन सी साइकोलॉजी या क्या आपके ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड थे? बिल्कुल मैम, ये जो फिजिकल ट्रेनिंग है ये तो जैसे हमारे गुरुजी है विजय मनीश्वर जी, वो यही मानते हैं कि 80% अगर हम फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं तो 20% हमें इनहेंस मिलती है मेंटल ट्रेनिंग से। तो जैसे ही मैं आप 2004 एथेंस मेडल की बात करूं तो जब मैं हमारे पास स्टार्ट लिस्ट आई एथलीट्स की तो मेरा 7वां नंबर था। तो उस वक्त मनीश्वर सर ही मुझे मेंटल ट्रेनिंग करवा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आपने डीप ब्रीथ इन करना है और उसके बाद विजुअलाइजेशन जैसे मैम ने बोला है तो वो करना है। वो मुझे एक लटा के पूरे शवासन जिसे बोलते हैं उसमें लटा के विजुअलाइज करवाया, क्योंकि उस लेवल पे जाके या उस समय कंपटीशन के समय खिलाड़ी के पास मैम और कुछ नहीं होता। खिलाड़ी के पास ये होता है कि अपनी जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो दे पाए, और वो तभी दे सकता है खिलाड़ी अगर वो मेंटली डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि होना क्या होता है, अगर मेंटली डिस्टर्ब होगा तो उसकी परफॉर्मेंस कम होनी है। खिलाड़ी एकदम से परफॉर्मेंस बढ़ा नहीं सकता मेंटल ट्रेनिंग से, लेकिन अपनी जो बेस्ट है वो दे सकता है, और बेस्ट देने से ही जो रिजल्ट्स है वो आते हैं। जैसे अब देखा हमने 2004 में और मेडल आया, तो जैसे वहाँ वार्म अप रूम में मुझे लेटाया, मुझे अभी भी पूरा वो मैं विजुअलाइज कर सकता हूँ सर ने कैसे मुझे लेटा के पूरा डीप ब्रीथ इन करवाया और उसके बाद शवासन में विजुअलाइज करवाया। और उससे मैं बताऊं कि मतलब 3-4 दिन पहले मुझे बुखार था, और वो बुखार था, बुखार के होने के बावजूद फिर उसके बुखार से रिकवर होने के बाद जो मैंने परफॉर्मेंस दी, जो मेरे ख्याल से उस वेट में मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस रही है, तो उसमें हमारा मेडल आ पाया। तो मैं यही सबको जो अटेंड कर रहे हैं सेशन और कोचेस भी हैं और हमारे एथलीट भी है, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि एथलीट के पास कंपटीशन के समय और कुछ नहीं होता। बस उनके पास एकदम से ऐसा नहीं होता कि मैं 180 उठा रहा हूँ तो मैं मेंटल ट्रेनिंग करने से 200 उठाने लगूंगा, नहीं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर मैं मेंटली डिस्टर्ब हो जाऊंगा वो 180 भी नहीं उठा पाऊंगा, 175 170 पे आ जाऊंगा। तो हमें उस अपने जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस हमने ट्रेनिंग की हुई है, हमने ट्रेनिंग सेशन में जो मैक्सिमम किया है, अगर हम वही कर पाए तो बहुत अच्छा होता है। तो हमें उसको मेंटेन करने के लिए मुझे लगता है कि मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है कि मेंटल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। मैम का सेशन आज बहुत अच्छा था, मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैम से। और इनकी जो इन्होंने स्लाइड वगैरह दिखाई है तो वो तो मैंने उसके स्क्रीनशॉट भी लिए हैं, श्योर है कि वो वापस आप उसमें शेयर कर दोगे। तो मैं सोच रहा था कि उसकी जो उतनी सी क्लिपिंग जो काट के मैं अपने मतलब इस मोबाइल में रखूं ताकि अपने मैं ट्रेनिंग, जैसे आप पता है कि मैं कोच हूँ तो अपनी ट्रेनिंग को दिखा पाऊँ कि हाँ भाई ऐसे ऐसे होते हैं, ये स्टेप होते हैं। तो बहुत बढ़िया सेशन रहा, और मेंटल ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल है हमारी स्पोर्ट्स में। हर स्पोर्ट्स में है, लेकिन पैरा स्पोर्ट्स में इसलिए ज्यादा है कि हम डिस्टर्ब, छोटी सी चीज पे हम डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि हमारी जो क्या लिमिटेशंस होती है, हमें बहुत से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हमें छोटी छोटी, जैसे मैम ने बोला कि
अगर हम वैसे तो हम इंडिपेंडेंट होते हैं, हमारे जो अपना घर है जहाँ भी रहते हैं वहाँ इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर कहीं हमें ऐसा कोई ऐसा जगह मिल जाए जहाँ हमें किसी की हेल्प लेनी पड़ जाए, तो बिल्कुल सही है कि उसमें बहुत सी झिझक आती है कि यार मैं कैसे वो कहूंगा या क्या करेंगे। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें डिस्टर्ब कर सकती हैं, तो उससे बचने के लिए मेंटल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपने भी मतलब शेयर किया और मेरे साथ भी हुआ है, ये डेफिनेट हुआ है, और सबको मेंटल ट्रेनिंग की जरूरत है। थैंक यू मैम। Thank you, Rajendra. So that was So, ma'am, coming from the champion himself. Yeah, I'd like to add there's something very important he said. उन्होंने जो ऐसे कहा कि मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ सर को कि हम जब प्रैक्टिस करते हैं या ट्रेनिंग करते हैं, तो अगर आज हमने ट्रेनिंग किया तो हमारा एक लेवल होता है फिजिकल फिटनेस का, एक स्किल का, तो वो कल जाके एक्चुअली बदलता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा परफॉर्मेंस अफेक्ट होता है, क्योंकि आज से कल में सिर्फ हम जो सोचते हैं उससे फर्क पड़ता है, और ये सोच की वजह से पूरा परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू नो टू डू मेंटल ट्रेनिंग on a regular level, regular basis. So I would like to thank sir. Thanks for the compliments. You can reach out to us. We'll happy to share all the content with you. No problem. Thank you, ma'am. Thank you. Yes, Gayatri, आपके लिए एक request आई है that would you like to share your contact details? And Sukant is here. That's Sukant, right? Yes, that is Sukant. Sukant, हम लोग साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं मेंटल ट्रेनिंग की। आप खुद इतने बड़े चैंपियन हैं और आज हम भी लकी कि आप मीटिंग रूम में हमारे साथ हैं। तो जितने भी यहाँ पे लोग हैं, आपका भी कोई एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया और रहेलू सर ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आप एज एन एथलीट कितना मानते हैं मेंटल ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को? हाय एवरीवन, एक्चुअली मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था। एक्चुअली लास्ट ईयर आई वाज लॉस्ट ऑलमोस्ट 10 सेमीफाइनल्स। तो मेंटल ट्रेनिंग आई वाज फीलिंग व्हेन आई वाज रीच टू सेमीफाइनल, आई फील समथिंग कि कुछ मेरे में एक आध लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लगता था, कभी लगता था लैक ऑफ लाइक प्रैक्टिस, कि मेरा इतना प्रैक्टिस नहीं कि सेमीफाइनल में हार रहा हूँ, तो प्रेशर आ रहा था मुझे। So I was reach out to the Gayatri ma'am and then I shared everything that I feel something on the last moment and I feel something. So मैंने अपना पूरा share किया and she helped me a lot and I got so much of help that I cracked that barrier and I beat world number 1 in the semi-final. And I was not imagined like I followed everything, I trust, because there was very short time we got before the Paralympic qualification, just 2-3 tournaments left, and then I got to contact her. And what I feel that mental training helps you, that exactly you will realize that where you are lacking, like you'll get exact picture, what things you are thinking, what actually you need to think. So that helped me a lot to beat world number 1, and definitely that will help in the future also. Thank you. Thank you, Sukant, and wonderful to know, Gayatri, that he has been your student, and thank you for giving us this performance through Sukant. It's amazing session. Positive attitude is the best attitude to wear, and that is what you said at the beginning. Thank you, Gayatri. Please share your contact details or something that you want to call out to the audience and say how to reach out to you. I will share the screen, ma'am, once again. The contact details are up there, and I'll also say it aloud for the benefit of everybody. The phone number is 8308 867 600, and the email ID is sport @samiksha samiksa.co. That's wonderful, and we are recording the session, so all the details are going to be there on the website. So it's time to close the session.
Can we have the major screen back, Sandy? So thank you, Gayatri. Thank you so much. Thanks everybody for joining. Yes, this was the last session in collaboration with Sports Authority of India, but we are meeting again at the same time tomorrow. In capacity of president, I'll be welcoming you tomorrow, and this next session will be done with collaboration of Paralympic Committee of India. And we will be doing a session along with Sanjiva Singh sir, who is an Olympian and who's also a Dronacharya awardee, and we will hear more stories from the man himself. Look forward, and of course, in the following session, we will be meeting Pragya Gildyal. She is pursuing yoga for years. She is also an international para athlete. So हमारे ही परिवार की सदस्य हैं. Attendance बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए और 16 तारीख तक हम सब ऐसे ही मिलते रहेंगे. Thank you so much. Good evening. Namaste. Thank you, Deepa ma'am.